Good morning, students. Today we are going to read the second part of the chapter Snake for Bihar Board Intermediate class. So it is for you uh, because I have already completed part 1, that is line number up to 2. So from line number 3 we will start today. Chapter is Snake and we are going to read it. Line number 3. An old beggar cried for alms at the gate. ALMS spelling. The pronunciation of this word is alms. L is silent. As we speak PALM, palm, in the same way it is ALM means arm. So an old beggar cried for alms at the gate. One day an old beggar came at the gate when the members of the family were engaged in the hunting of the snake. They told her not to pester when they were engaged in a snake hunt. The beggar demanded for alms, भिक्षा मांगा. ये लेडीज beggar है. उन्होंने that beggar had come and she demanded for alms. That time the members of the family were engaged in the hunting of the snake. So they said not to disturb them because they were engaged in a snake hunt. On hearing it, the old women became happy. On hearing it, the old women became happy. When that women beggar heard this, she became happy. You are fortunate. She said that the people of the family were happy. It is God Subramanya who has come to visit you. In that area, God Subramanya was compared to the snakes. सांप का प्रतिनिधित्व करने वाला देवता माना जाता है गॉड सुब्रमण्य को. तो गॉड सुब्रमण्य आ गए मतलब सांप घर में कहीं दिखाई पड़ा तो घर के लोग खुश हो जाते हैं उस इलाके में कि भाई गॉड सुब्रमण्य का ये प्रतिनिधि आया है. तो इट इज चैप्टर इज शोइंग आवर बिहेवियर टुवार्ड्स अ स्नेक. Sometimes we beat a snake, sometimes we worship a snake. So that old lady who was a beggar, she told them that they were fortunate because it was the symbol of God Subramanya and they had seen the snake. Who has come to visit you, don't kill the snake. उस भिखारिन ने घर के लोगों को बताया कि इसको मारिए नहीं, ये भगवान का भेजा हुआ है. मदर वॉज इन हार्टी एग्रीमेंट. माँ जो थी घर की वो उस लेडीज़ के साथ उस भिखारिन की बातों से पूर्णतः सहमत हो गई. हार्टी एग्रीमेंट, बिल्कुल दिल से राजी हो गई कि हाँ हाँ बिल्कुल सही है. यू आर राइट, आई फॉरगॉट ऑल अबाउट द प्रोमिस्ड अभिषेकम. घर में लोग पूजा पाठ मानते हैं, कभी कभी मनौती करते हैं. तो उस लेडीज ने भी बताया कि उसने घर में अभिषेक करने का पूजन करने का निर्णय लिया था जिसको भूल गई थी. दिस इज अ रिमाइंडर. सो द प्रेजेंस ऑफ द स्नेक वाज द रिमाइंडर ऑफ हर प्रोमिस टू डू अभिषेकम. शी गेव ए क्वाइन टू द बेगर. शी गेव ए क्वाइन टू द बेगर. ही प्रोमिस टू सेंड डाउन ए स्नेक चार्मर एज शी वेंट. वो जाती हुई बोली कि वो स्नेक चार्मर को, सपेरा को भेजेगी. स्नेक चार्मर का मतलब दिस मीन्स सपेरा, स्नेक चार्मर. ओके. सो आफ्टर दैट presently an old man appeared at the gate and announced himself as a snake charmer. After that a snake charmer appeared there. They gathered around him. People gathered around him. He spoke to them of his life and activities and his power over snakes. उसने अपने सपेरे वाले गुण का प्रदर्शन करने का निर्णय लिया. वादा किया कि वो सांप को पकड़ के निकाल देगा. They asked admiringly, how do you catch them? तुम कैसे पकड़ोगे उनको? घर के लोगों ने पूछा. Admiringly मतलब बड़ाई करते हुए. Admire बड़ाई करना, admiringly मतलब बड़ाई करते हुए. They pointed the direction in which the cobra had gone and asked him to go ahead. घर के लोगों ने उसको बताया कि इस दिशा में सांप गया है, कैसे पकड़ोगे इसको बताओ. He looked helplessly about and said,
इफ़ यू शो मी द स्नेक आई विल एट वंस कैच इट। उस सपेरा ने बताया कि अगर सांप बता दीजिएगा तो मैं उसको पकड़ लूँगा। अदरवाइज व्हाट कैन आई डू? द मोमेंट यू सी इट अगेन सेंड फॉर मी, आई लिव नियर बाई। ही गेव हिज नेम एंड एड्रेस एंड डिपार्टेड। In the part 1, we had seen the members of the family were criticizing the servant Dasa, not catching the snake, not being careful to watch the snakes, and now they had called a snake charmer. The snake was also helpless to catch the snake. He could catch only when the people will show him the snake. So he gave his name and address and departed. So the snake charmer, after giving his name and address, went away. Then line number 4. At 5 in the evening, they threw away their sticks and implements and repaired to the veranda to rest. At 5 o'clock in the evening, all the members who were searching for the snake, they came again to take rest at the veranda. They were failure to catch the snake. They had turned up every stone in the garden. टर्न अप एवरी स्टोन का मतलब होता है सारा प्रयास कर लेना, सब कुछ कर लेना। मतलब दे हैड टर्न अप एवरी स्टोन, हर कुछ कर लिया सांप को पकड़ने को, लेकिन सांप पकड़ाया नहीं। इन द गार्डन एंड कट डाउन एवरी ग्रास, हर घास को काट के अलग कर दिया। ग्रास ब्लेड एंड श्रब, कोई लत्तरदार वगैरह पौधा था वो भी। सो दैट द टीनिएस्ट इंसेक्ट, ताकि छोटा से छोटा कीड़ा मकोड़ा भी आवे, कमिंग इन टू द गार्डन शुड हैव नो कवर, वह छुप नहीं पाए। दे वर लाउडली डिस्कसिंग द वेरियस मेजर्स दे वुड टेक टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट रेप्टाइल्स इन द फ्यूचर। रेंगने वाले जीवों से कैसे बच सकते हैं भविष्य में, इसके विषय में वे लोग बात कर रहे थे। ओके। When Das appeared before them carrying a water pot, then they saw that then Das, the servant of the house, appeared. वो आया उनके सामने। Before them carrying a water pot, वो एक पानी वाला घड़ा लेकर के आया था जिसमें पानी वगैरह लाते थे। Whose mouth was sealed with a slab of stone, उसको मुंह के ऊपर से एक पत्थर रख करके लाया था वो। He put the pot down and said, I have caught him in this. I saw him peeping out of it. मैंने उसको इसी डब्बे में देखा बाहर मुंह निकालते हुए, मैंने उसको पत्थर से कवर करके पकड़ लिया, सांप उसी में था। Saw him before he could see me. He explained at length the strategy मतलब रणनीति, कैसे मैंने उसको पकड़ा, ये सब कुछ उसने बताया। He had employed to catch and seal up the snake in the pot. उसने सांप को कैसे पकड़ा है सब कुछ बताया डिटेल में। दे स्टूड एट ए सेफ डिस्टेंस एंड गेज्ड एट द पॉट। दास हैड द ग्लो ऑफ ए चैंपियन ऑन हिज फेस। डोंट कॉल मी एन इडलर हियर आफ्टर। अब वो बोला, ये उसके बोलने का समय था। पहले तो घर के लोग बोले थे कि तुम काम नहीं करता है, बेईमान है, आलसी है, सुस्त है, यह है, वो है, केयरलेस है। सर्वेंट को बोलने का मालिक को राइट रहता है, तो बोले थे घर के लोग। अब वो मौका मिला, सांप पकड़ के लाया था, वो पकड़ दिया था और किसी से नहीं पकड़ा पाया था, तो बोला कि डोंट कॉल मी एन इडलर, अब दोबारा कभी भी मुझे सुस्त या नमक हराम या बिना काम के मत कहिएगा। He said, mother complimented him on his sharpness and wished she had placed some milk in the pot as a sort of religious duty. ये लोग समझते हैं कि सांप को दूध पिलाना चाहिए, दूध देना चाहिए। सांप दूध पीता है कि नहीं पीता है साइंटिफिक बात और है। साइंस के लोग कहते हैं कि सांप दूध नहीं पीता, लेकिन ये समाज में धारणा है कि सांप को लोग दूध देते हैं पीने के लिए। दैट इज कॉल्ड ए रिलीजियस ड्यूटी। दास picked up the pot cautiously and walked off, saying that he would leave the pot with its content with the snake charmer living nearby. वो नौकर मिस्टर दास बोला कि वो जाएगा और बगल में जो पड़ोसी जो स्नेक चार्मर है सपेरा, उसको यह सांप दे आएगा, यहाँ रख के क्या करेगा उसको। He became the hero of the day. That day he was the hero because he had caught the snake. They watched him in great admiration. Admiration मतलब बहुत आश्चर्य भरी निगाहों से, प्रशंसा भरी निगाहों से उन लोगों ने देखा उसे। एंड डिसाइडेड टू रिवार्ड हिम एडेक्वेटली। एडेक्वेटली मतलब पूर्णतः, काफ़ी मात्रा में इनाम देने का निर्णय लिया घर के लोगों ने। इट वॉज 5 minutes सिंस दास वॉज गॉन
When the youngest son cried, और उसके जाने के 5 मिनट बाद यंगेस्ट सन जो था घर का सबसे छोटा लड़का वो आ गया और आकर के बोला, आउट ऑफ ए होल इन द कंपाउंड वॉल ए कोबरा इमर्ज्ड। वो बोला कि इसमें से घर में एक कंपाउंड में होल था, वॉल था, कंपाउंड वॉल में होल, उसमें से एक सांप घुस गया है भीतर। इट ग्लाइडेड अलॉन्ग टुवार्ड्स द गेट, गेट की तरफ आया। पॉज फॉर अ मोमेंट टू लुक एट द गैदरिंग इन द वरांडा, और गैदरिंग में वरांडा में भीड़ देखा तो वहाँ रुक गया। विथ इट्स हुड हाफ ओपन, उसका थोड़ा माथा उठा हुआ था। इट क्रॉल अंडर द गेट, गेट के भीतर घुस गया। डिसअपियर्ड अलॉन्ग ए ड्रेन, नाला में कहीं गायब हो गया। व्हेन दे रिकवर्ड फ्रॉम द शॉक दे आस्ट, जब सांप के विषय में न्यूज मिला तो घर के लोग पूछे, डज इट मीन दैट देयर आर 2 स्नेक्स हियर? एक सांप तो पकड़ा के गया और दूसरा सांप की तुम बात कर रहा है क्या? 2 स्नेक है घर में? आर देयर 2 स्नेक्स? द कॉलेज बॉय मरमर्ड, और कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का था वो फुसफुसाया। आई विश आई हैड टेकन द रिस्क एंड नॉक्ड द वाटर पॉट फ्रॉम दासाज हैंड, वी माइट हैव नोन व्हाट इट कंटेंड। वो बोला कि जो दास लेके जा रहा था डिब्बा सांप वाला जिसमें सांप था, तो उसको मैंने पलट दिया, पलट करके देखना चाहा कि वो क्या लेकर के जा रहा है, तो सांप फिर निकल गया और फिर आ गया घर में ही। तो ये क्या हुआ कि जिस नौकर को मैंने दोष लगाया, दैट सर्वेंट वाज ए गुड ह्यूमन बींग, he was obedient to his work duties, we blamed him, at last he was successful in catching the snake, and at last again the snake came into the house due to the disbelief or misbehavior, doubt shown by the college boy of the house, घर के छोटे बच्चे ने की गलती के कारण again that snake came into the house due to the mistake performed by the college boy. So उसके देखने के चलते देखा कि डिब्बा में क्या लेकर के जा रहा है, तो उसमें सांप था, तो खोल कर दिया, उसको नीचे गिर गया, सांप फिर से भाग के घर में चला आया। अब ये नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर। माय डियर फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू डू नाउ क्वेश्चन आंसर। व्हाट मेड द ओल्ड बेगर हैप्पी? द ओल्ड बेगर बिकेम हैप्पी बिकॉज she knew that the presence of a snake was the presence of God Subramanya. So that old beggar became happy, for that she got 1 coin. What did the beggar women say? The beggar women said that, देखिए भाई, what did the beggar women say? Means the beggar women said that the presence of the snake was the reminder of the God Subramanya. Why did the snake charmer look helplessly about? The snake charmer looked helplessly about the snake because he was unable to catch the snake without seeing it. वो बिना देखे हुए सांप पकड़ नहीं सकता था, so he was helpless. Why did they cut down all the plants and the grass in the garden? They cut down all the plants and grass in the garden to catch the snake. Cite instances from the lesson which show the old mother's superstitious nature. Superstitious मतलब अंधविश्वासी महिला थी, वो घर की जो लेडीज थी मालकिन, वो कैसे कैसे पता लगता है? बिकॉज शी हैड ऑफर्ड, शी हैज accepted her mistake that she had promised the God to do Abhishekam. She had not done that, so the God had sent the snake there as a reminder. ये बात फिर अगेन जब वो पकड़ा करके सांप आया, डब्बा में रखा हुआ था, दास लेकर के आया, तो लेडीज बोली कि दैट स्नेक शुड बी गिवन मिल्क, राइट? सो दीज एग्जाम्पल्स शो दैट द लेडी वाज superstitious. Did Das, in your opinion, really catch the cobra? Give reasons. No, he did not catch the cobra. Actually, the cobra was hidden in that box, in that pot. He only put the stone above that, and by the way, and so he caught the cobra. What impressions of Das do you get from this episode? From this episode, we get the impression that Das was a servant of the house. He was very eager, he was very brilliant, he was obedient to his duties, he was being scolded by the members of the family, but still then he was continuing his job. At last he was able to catch the snake. He was really a hero in this work. So he was a very good human being.
Right. After that, we will see here long answer questions. The neighbors who assembled to be hear of cobra talk about several things. Make a list of the issues they touch upon. What does the conversation suggest about the people's reaction when danger strikes? Yeah, people talk about so many things. They started blaming Mr. Das, the servant of the family. Yeah, this is the nature of human beings. They speak much and do less. So there also neighbors were speaking about the negligence of the servant. They were saying that he was the silliest, laziest servant on the earth, but they did not know what the reality was. At last it was proved that their opinions were meaningless because Mr. Das was able to catch the snake himself, and he did so. So what was the meaning of comments made by people? How do you react when your parents chide you for neglecting your duties? We also feel bad when our parents chide us for our mistakes. So, no one likes to be chid, but it is the duty, it is the power of the elders to chide children whenever they make mistakes. And the positive thing is that we should take all chidings in positive way. Only then we can improve our qualities. If we start quarreling, then we will never be able to improve our characters. Then next question, read carefully the following utterances of Dasa. दास बोले थे, उसके विषय में ये लाइन है, देयर इज नो कोबरा, वेयर इज द स्नेक, आई हैव कॉट हिम इन दिस, डोंट कॉल मी एन आइडलर हेयर आफ्टर. देयर इज नो कोबरा. पहली बार जब वो बोला गया था, घर के लोगों ने बोला कि घर में सांप घुस आया है, सोया था दास, उसको जगाया गया, तो वो बोला था कि देयर इज नो कोबरा, घर में सांप उप नहीं है, क्योंकि बिकॉज ही न्यू इट वेल that he was cleaning the house daily, so he knows every place of the house, every corner of the house. There was no cobra, he was sure, but it had come from outside. Where is the snake? The snake was in the water pot. I have caught him in this. In this means in the water pot. Don't call me an idler hereafter. Don't come call me idler. It was said by Das. And he was happy, he was satisfied. He removed this blame to be idler, to be called idler by people, by the members of the house, because he had caught the snake. So he rejected this phrase idler, which means lazy. Does the story throw any light on how people faced with sudden danger behave? Yes, people take decisions. Sometimes they take decisions in haste. कभी कभी हड़बड़ी में डिसीजन लेते हैं लोग. Here also they started cleaning, cutting the grass, the shrubs which were in the surrounding, in the garden, without thinking seriously upon the matter. So they started like mob lynching. Narrate in brief the people's attempt to catch the cobra. अभी क्या क्या लोगों ने किया, ये सारा क्वेश्चन के ऊपर मैंने डील किया, आप इसको लिख दें तो हो जाएगा. दे ब्रॉट बम्बूज, लाठीज, स्टिक्स, दे गॉट cutters, wood cutters, grass cutters, whatever they got. They started cutting grass, shrubs, small plants. They made it clear so that even a little insect and a little insect may be caught, might be caught. Narrate in brief what the snake charmer tells about catching a snake. The snake charmer told them that he could catch the snake only when it was seen, it was visible. If it was not visible, then it was not possible to catch the snake. Whenever it would be visible, they might remember him. He would come there. He was living in the neighborhood. Group discussion. ये group discussion है. This is question. You will do it for group discussion. Okay. After that, I think that we should do this question. डिक्शनरी यूज करने के लिए कहा गया है तो मैं करता हूँ, आपको आसान होगा. बंगलो, तो BANGLOW, किसका स्पेलिंग गलत है, क्या सही होगा, सो करना है इसमें.
तो BUNGLOW है ना, तो आप इसको करें BANGLOW, राइट। ये करना है, क्या करना है, तो BANGLOW, ग्रेट, GREAT, ठीक है, GREAT करेंगे इसको। देन डिस्टेंस, DISTANCE, ड्रेडफुल, DREADFUL, इसमें एक एल और DREAD। इम्प्लीमेंट, IMPL, इम्प्लीमेंट, IMPLIMENT, इम्प्लीमेंट, IMPLEMENT, ठीक है, इसको करें। मर्मर, MUR, ये MUR नहीं MUR। एलोक्वेंट, ELOQUENT, बेगर, BEGGAR, NEIGHBOUR, साइज, तो SIZE, डाइंग, DYING, okay. So after that, next question here, इसका आपको वर्ड बनाना है, सेंटेंस बनाना है। स्वीयर का मतलब होता है शपथ लेना, स्वीयर प्रॉमिस करना, ओथ लेना भी होता है और वादा करना भी। स्वीयर मतलब कसम खाना और प्रॉमिस करना, दोनों इसका मीनिंग होगा। सेंटेंस बनेगा, आई स्वेयर टू स्पीक ऑलवेज ट्रूथ, आई स्वेयर टू मेंटेन दिस। चैंट मतलब बोलना और जोर जोर से बोलना, चैंट मंत्रोच्चारण करना। मेजर मात्रा भी और पैमाना भी। रिपेयर मरम्मत करना, मेक, और आराम करना भी। इस चैप्टर में इसका यूज हुआ है टू टेक रेस्ट के सेंस में, और रिपेयर का मतलब मरम्मत करना भी है। नॉक खटखटाना, आवाज़ देना। ग्लेयर घूरना, और सी टू सी देखना भी। कवर ढकना, ठीक है, और झूठ बोलना भी कवर का। वॉच टू सी देखना भी, ठीक है, गार्ड भी करना। देन लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, ये आपको इसमें लगा करके बनाइए। ऑब्स्ट्रक्टेड V3 है, अन लगा दिया तो अन लगाने से ये एडजेक्टिव हो गया। तो ब्राइटेंड विद द अनऑब्स्ट्रक्टेड ग्लेयर, अनऑब्स्ट्रक्टेड हियर हैज़ बीन यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। तो ये अन लगा करके इसको ऑब्स्ट्रक्टेड को हमने V3 था तो इसको बना दिया एडजेक्टिव। और द स्नेक डिसअपियर्ड, इसमें डिस लगा दिए तो ये नेगेटिव बन गया, अपीयर्ड, ठीक है, तो ये वर्ब ही रह गया और ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो आफ्टर दैट आप इसी तरह से नीचे वाले को बनाना है। तो ओबेड, डिसओबेड, क्राउंड, अनक्राउंड, UN लगा के। डिजॉल्व, सॉल्व द डिजॉल्व, DISS, डिसबिलीव्ड, DISB, इसमें DIS लगा देंगे बिलीव्ड में। चेंज्ड, अनचेंज, UN लगा देंगे, अनचेंज हो जाएगा। डिसकनेक्टेड हो जाएगा। अनडिसाइडेड, अनअनाउंस्ड, डिसएग्रीड, अननोटिस्ड, अनक्वालिफाइड, डिसक्वालीफाइड, ये डिसक्वालीफाइड आपको ये मैंने बोल दिया। आफ्टर दैट ये इसको मिला लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा। तो ये वन ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग टुगेदर, एक साथ रहने वाले लोगों को बोलते हैं इनमेट। रेस्ट और स्लीप इन द अर्ली आफ्टरनून, आराम करना अर्ली आफ्टरनून में, उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो ये ऊपर से नीचे लाएंगे, सराउंडिंग हैक सन्नी सिस्टा, तो रेस्ट और स्लीप इन द आफ्टरनून इज कॉल्ड सिस्टा। पर्सन हु डज नॉट वर्क, तो पर्सन हु डज नॉट वर्क ये इडलर। देन फोर्सफुल एंड फ्लुएंट इन स्पीच, तो एलोक्वेंट, अच्छा बोलने वाले को एलोक्वेंट कहते हैं। प्लान एंड मेथड यूज टू अचीव अ गोल, ये आपको स्ट्रेटेजी।
ब्राइट एंड विथ सनलाइट, सन्नी, यहाँ से लेकर के यहाँ लगा दिया मैंने। एवरीथिंग अराउंड एंड अबाउट ए प्लेस, ये सराउंडिंग। आउट कट रफली बाई ब्लूज, हैक, ये काट कूट कर देना, तो ये हो गया। देन दिस क्वेश्चन ये है स्वीयर एट, ये गाली गलौज करना, किसी को दोष देना, इसको बोलते हैं स्वीयर एट। ठीक है। दे स्वीयर एट दास फॉर नॉट कैचिंग द स्नेक, फॉर नॉट बीइंग सीरियस। आस्ट फॉर, पूछना, दे आस्ट फॉर द नेक्स्ट डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। ड्रॉप इन मतलब घुस जाना, ये प्रवेश कर जाना, तो दैट बॉय ड्रॉप्ड इन द कन्वर्सेशन। सेंड फॉर, ही वॉज सेंट फॉर द फॉर ए न्यू बाइसिकल। बीट हिम अबाउट द बुश, ये निरर्थक प्रयास करना। दे बीट द स्नेक इन द बुश, खोजे नहीं मिला। बीट अबाउट द बुश। बट इन प्रवेश करना, द बॉय बट इन द हाउस। प्रोजेक्ट वर्क है, ये आप कर लेंगे, ये इसका है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, इसके लिए मैं बना दूंगा एक से और वीडियो अलग से। इसमें स्टोरी, टेल, नोवेल, फैबुल, लीजेंड, मीथ, पैराबुल, नैरेटिव, एलेगरी, एनेक्डोट, इसका मीनिंग देना है, तो ये एक वीडियो इसके लिए अलग से कर देंगे, ये बड़ा हो जाएगा। सो आई थिंक दैट यू हैव heard everything, so thank you for viewing it. Have a nice day.